Good morning, everyone. Welcome to another talk. So, today we are going to talk about the Central American countries and also we are talking about Caribbean countries. As we know that these are all small countries which is present near the North America continent. As we know that these are all seven countries which is present in the edge of North American continent. Here we are talking about the countries named as Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Honduras, and Belize. These are all the seven countries which is present in the Central America. And if we are talking about Caribbean countries which is present in the Caribbean Sea, that is why it is called a Caribbean countries. Here we are talking about the Cuba, which is also Caribbean country, which is also called a sugar bowl because here it is very large producer of sugar cane. And the Bahamas is also the group of islands where the peoples live, and also here the private island are purchased by the illegally. And also here the Jamaica, which is also island, and Haiti. You can see the Haiti is also controversial country where all the controversies like political controversies present here. And Dominican Republic country, it is also the Caribbean country considered as the Caribbean countries. And Puerto Rico, it is also occupied by a US. That's it. That is why this is also Caribbean countries. And Barbados is also the Caribbean countries. These are all are Caribbean countries which is very relevance in the whole of the world. These all are the political map of the North American continent. Before we going to the physical map, we have to learn the named Bay, Gulf or White. Bay is like a थ्री साइड से जो कवर्ड होता है, वो लैंड से कवर्ड होता है, उसको हम बे कहते हैं. और गल्फ और बाइट, these all are similar words and these are the synonyms of each other. So we are landing on the physical map of America. First of all, we are talking about the seas, right? Which kind of seas present here? And also we are talking about the gulfs and also the bight which is present on in the American continent, that is present in the Arctic Circle में जो प्रेजेंट है वो ब्यूफोर्ट सी है. एंड उसके अलास्का की नीचे जो है वो बेरिंग सी है. और अलास्का की जो नीचे वाली जो रो है वो गल्फ ऑफ अलास्का कहलाती है. एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे बैफिन बे है. बैफिन बे के नीचे ही हडसन बे है और उसके ही जो नीचे वाली साइड है उसको जेम्स बे कहा गया है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब्राडोर सी है. और ये जो है अमेरिका की सबसे बड़ी लेक्स में गिनी जाती है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे. दैट इज नेम्ड एज ग्रेट लेक्स, राइट? ऑल्सो पैसिफिक ओशन वी नो. एंड दिस इज द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया विच इज़ मैक्सिको के ऊपर और गल्फ है, ये लाइक गल्फ बनी है, ठीक है. गल्फ ऑफ मैक्सिको भी आप देख रहे हैं. इस तरह से हम ये सभी सीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे सरगासो सी है जहाँ पे क्या होता है कि जो जहाज होते हैं वो यहाँ आके स्टक हो जाते हैं बिकॉज हियर वी फाउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एल्गी विच बिकम अ ऑब्स्टेकल इन द हमारे सारे सीज़ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. हम देख रहे हैं गियोफोर्ट सी, बेरिंग सी, फिर उसके बीच में ही बेरिंग स्ट्रेट आ जाता है, हडसन बे, जेम्स बे,
बैफिन बे, लैब्राडोर सी, ग्रेट लेक, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ पे है सरगासो सी और यहाँ पे है कैरेबियन सी विच इज़ कैरेबियन कंट्रीज़ भी उससे ही रिकॉग्नाइज की जाती हैं। लेट्स गो अनदर टॉपिक दैट इज़ द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में जो माउंटेन्स रेंजेस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैनेडियन शील्ड है जो पठार है, ठीक है। तो पठार जो है उसके नीचे ही देख लो ग्रेट प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेट प्लेन के साइड पे आप देख सकते हैं रॉकी माउंटेन्स और यह है एप्लांचर माउंटेन, राइट। तो हमें पता होना चाहिए बेसिक बातें कि रॉकी माउंटेन अगर यहाँ से है तो यहाँ से एप्लांचर माउंटेन है जो वो दोनों माउंटेन जब आपस में एक जगह एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो बीच में ऑब्वियसली बेसिन बनेगा और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। और ये ग्रेट प्लेन्स हैं जो कि प्लेनर एरिया है जो रिलेटेड। अगर हम बात कर लें यहाँ पे ऊपर अलास्का वाली जगह पे, तो यहाँ पे ब्रुक रेंज कहलाती है एक अलास्का रेंज, अलास्का क्योंकि यहाँ पे अलास्का पड़ता है इसलिए अलास्का रेंज। यहाँ पे कोस्ट है तो कोस्टल रेंज। और यहाँ पे दो सीरा कहलाते हैं, सीरा नवेदा एंड एक मदरीज, ठीक है, मद्रास भी बोल सकते हैं, मदरीज। तो यहाँ पे एक रॉकी माउंटेन है, यहाँ से कैस्केडस रेंजेस हैं जो दोनों माउंटेन रेंजेस को जब दोनों आपस में जुड़ रही हैं तो आपस में एक बड़ा सा पठार निकल के आ रहा है, उस पठार को कहेंगे कोलोराडो प्लेट्यू। इस तरह से हमारे माउंटेन्स कंप्लीट होते हैं कि एक यहाँ से पठार है, दो यहाँ से माउंटेन्स हैं, जो एक बीच में जो है वो ग्रेटर प्लेन्स हैं और उसके नीचे ही हमारा बेसिन बन रहा है। तो जो कोस्ट पे प्लेन्स हैं उसको कोस्टल प्लेन कहा गया है। यहाँ पे भी अगर एक कोस्ट देखें तो कोस्ट रेंज कहलाती हैं। यहाँ पे दो सीरे हैं जो एक नवेदा है एक मद्रीज है, और ऊपर देखें तो ब्रुक रेंज कहलाती है, एक अलास्का रेंज कहलाती है। अलास्का रेंज में ही सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम होता है माउंट मैकनले एंड वी आर कंप्लीटेड आवर माउंटेन रेंजेस। अब हम पता चल गया है कि अगर यहाँ पे अगर पठार है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे अपने आप ही हमें पता चलता है कि यहाँ से रिवर्स बहेंगी और डिज़र्ट भी हमें पता चल जाता है। इसमें हमें यहाँ हमने देखा कि रॉकी माउंटेन यहाँ से आ रहा था और एक एप्लांचर माउंटेन जो है वो दोनों यहाँ पे आके बेसिन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ही एक बड़ा सा घास का मैदान है जिसको प्रारीज कहा जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसिसिपी रिवर जो है वो यहाँ से कनेक्ट हो रही है। एक यहाँ इस वाले पहाड़ से एक रिवर निकली है, उसका नाम ओही, पता नहीं क्या ओही। एंड ऑल्सो यहाँ से इस वाले रॉकी माउंटेन से भी एक रिवर आ रही है जो जिसका नाम मिसूरी रिवर है। और अगर यहाँ से देखें रॉकी माउंटेन से, यहाँ से भी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में रिवर गिर रही है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। और यहाँ पे भी रेंजेस हमने देखी थी, अलास्का रेंजेस और कैस्केडस रेंजेस, जिससे कि यहाँ पे भी कोलंबिया रिवर पाई गई है। और ये यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है जो क्या करती है, फोर्स करती है किसी भी रिवर्स को बेसिन बनाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं बेसिन में हमारी प्रारीज पाई जाती हैं। इस तरह से हमारी रिवर्स भी कंप्लीट। कुछ कनाडा में पाई जाने वाली लेक्स बेसिक लेक्स है जिसका नाम है एक बियर, स्लेब, अथाबसिया और विनिपेग। ये सारी लेक्स के नेम्स हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द कनाडा। दोस्तों अगर हम ग्रेट लेक्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें 5 सुपीरियर लेक्स का नाम आता है। तो इसमें सबसे पहली जो लेक्स का नाम है वो सुपीरियर है, दूसरा हुरोन है, तीसरा ओंटारियो है और चौथा है ईरी। ये चारों रिवर जो हैं वो कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे स्थित हैं। और जो मिचिगन लेक है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही एग्जिस्ट करती है। और इसका मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है होम्स। होम से हम इसको रीड आउट करते हैं कि किस तरह से हम इसको लर्न करते हैं। ये हैं हमारे ग्रेट लेक्स के नाम। इसी वीडियो के एंड से हमें ये पता चलता है कि हमारा फिज़िकल और जो है पॉलिटिकल मैप नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का हो चुका है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।